करिए सत्संग में चित जोर धरू सत्संग में चित जोर धरू गुरु दर्शन बिना चैन नाए शब्द आभास समह में हरसे शब्द आभास समह हरसे सुरत गगन में नियत भरू सुरत गगन में नियत भरू गुरु दर्शन में जाए राधा स्वामी पर दया विचारे राधा स्वामी पर दया विचारे मैं अब तुम्हारे शरण परूं मैं अब तुम्हारे शरण परूं गुरु दर्शन बिना चैन नाए मैं कौन उपाय करूं गुरु दर्शन बिना चैन नाए मैं कौन उपाय करूं काल कर्म बहु विघ्न लगाए काल कर्म बहु विघ्न लगाए कैसे उनको दूर करूं कैसे उनको दूर करूं गुरु दर्शन बिना चैन नाए गुरु दर्शन बिना चैन नाए गुरु दर्शन बिना चैन नाए Thank you, Diptima and your little princess. It was just really wonderful beginning of our satsang and today's satsang. It was very nice. So we are moving to the next from Montreal to Calgary, and I would like to invite Swarna Ma to offer a bhajan. Swarna Ma. Joy Guru. Hello, can you listen to me? Hello. Yeah, you are audible. I'm audible? Okay. Yeah. Okay. প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই এসেছো তুমি প্রভু ত্রিতাপ করিতে নাই নাই আর ভয় নাই ওগো নাই নাই আর ভয় নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার বেদনে কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার বেদনে আসিলে তুমি হে মোর স্বামী আসিলে তুমি হে মোর স্বামী নাই আর সুখ তাপ নাই ওগো নাই আর সুখ তাপ নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া কৃতিতাপে ধাই তবু পথ বাহিয়া তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া কৃতিতাপে ধাই তবু পথ বাহিয়া তবু হাত খানি আছে গো জানি তবু হাত খানি
তোমারি সেবার অমৃত হবনে অমরণ গীতি আজি ধ্বনিছে ভুবনে তোমারি সেবার অমৃত হবনে অমরণ গীতি আজি ধ্বনিছে ভুবনে স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমার দয়ার দানে স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে বর্ধন পথ মোরা পাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই সুনিষ্ঠ নন্দনাই তব বন্দনাই অনুগতি আবেগে শ্রী চরণ রাঙ্গাই সুনিষ্ঠ নন্দনাই তব বন্দনাই অনুগতি আবেগে শ্রী চরণ রাঙ্গাই নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরিল ক্লেশ নাই দ্বন্দ্ব নাই ক্লেশ আনন্দ হরিল ক্লেশ ভরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই এসেছো তুমি প্রভু ত্রিতাপ করিতে নাই নাই আর ভয় নাই ওগো নাই নাই আর ভয় নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই প্রভু তোমারে প্রণাম জানাই জয় গুরু It was so melodious, Madhur, Sundar, or I don't have words to explain the Swarnama. It was so melodious, and I did not realize it's over now. Though I do not understand full Bengali all the words, but it was really nice. So we would like to move again back to the Montreal. We travel from Calgary to Montreal, and I'm inviting Supriya Ma to do jajan or discussion or share her experience with us. Supriya Ma. जय गुरु आवाज आ रही है मेरी? ओके। आ रही है आप। परम पूजनीय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी बड़ी माँ के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय पूज्य पाद श्री श्री परदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी दादाओं और माओं को मेरा जय गुरु। मैं सुप्रिया मॉन्ट्रियल कनाडा से। हमने अपनी लाइफ में देखा है कि ठाकुर जी जिस जिस घर में है वास करते हैं वहाँ पे हमें अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसको बिलीव कर पाना या सोचना कि ये कैसे संभव हुआ, वो मतलब अपने आप में एक सरप्राइज है कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो मेरी लाइफ में भी अभी रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जनवरी 19 से लेके मतलब जब जैसे बच्चों का स्कूल खुला विंटर वेकेशन के बाद से हमारे स्कूल में काफी आउटब्रेक्स आने लगे कोरोना के, बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे। तो हम लोग डर से मतलब भेजना नहीं चाह रहे थे बच्चों को, लेकिन फिर भी हम सब भेज रहे थे क्योंकि कंपलसरी भी है और सोचा कि ठाकुर जी हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं घट सकता। तो ये मन में पॉजिटिविटी लेके हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और फिर भी मतलब सडनली 1 वीक में इतने सारे केसेस आने लगे कि हमारे अंदर से थोड़ा सा हमें डर लगने लगा कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए करके। तो हमने स्टॉप किया। मंडे को मैंने स्टॉप किया, मंडे 18 को स्टॉप किया स्कूल भेजना, और 19 को मतलब स्टॉप कर ही दिया था। फिर भी मतलब मेरी बेटी के को फोन आया, ईमेल आया कि योर चाइल्ड वाज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद कोविड पॉजिटिव। तो
मतलब डर तो था ही, और ये सुनने के बाद मतलब बहुत ज्यादा हम डर गए। फिर भी ठाकुर का नाम लेके हम बोले कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है, स्टे एट होम, अब हम घर ही पे रहते, नहीं भेजेंगे बच्चों को। लेकिन उसी दिन सडनली रात को 3 बजे मेरी बेटी को हाई फीवर आ गया। हाई फीवर आने के बाद हम काफी डर गए कि क्या हो गया, कोरोना के बीच से आई है और ऐसा फीवर आ गया। फिर भी मतलब मन में एक पॉजिटिव लेके चलते रहे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, मे बी वायरल होगा, इतने दिन के बाद से घर से बाहर निकली है तो ठंड लग गई होगी। तो वो सोच के मैं बार बार अपने हस्बैंड को बोलती थी कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, ठाकुर जी पे भरोसा रखो, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं बोली ठीक है। और तीसरे दिन उसका फीवर नॉर्मल हो गया, वो बिल्कुल फिट, कोई और कुछ कॉम्प्लिकेशन ठाकुर जी की दया से नहीं हुआ। हम लोग चैन की सांस लिए कि हाँ चलो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस एक दिन के बाद मेरी छोटी बेटी को रात को 3 बजे फिर फीवर आया। तो हम डर गए कि अरे फिर इसको आ गया। फिर भी मतलब मन में ये था कि बड़ी को जब ठीक हो गया तो छोटी को भी कुछ नहीं होगा, वायरल ही होगा। भगवान का नाम लिए, बोले कुछ दवाई ववाई दिया, उसका सुबह तक के उसका फीवर नॉर्मल भी हो गया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो मैं बोली चलो ये तो ठीक हो गई। बट उसी दिन दोपहर को 3 बजे मुझे हाई फीवर और साथ में कफिंग और इतनी वीकनेस कि मैं खड़ी ना हो पाऊँ। तो हम लोग इतने डर गए कि मैं, ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है करके। और 2 दिन 3 दिन मेरा मतलब फीवर उतर नहीं रहा था। तो सर ने बोला प्रेयर टाइम हो रहा है, चलते हैं, प्रेयर करते हैं, हिम्मत जुटाओ और मेडिटेशन करो, फीवर शायद उसके बाद डाउन हो जाएगा। तो मैंने दवाई लिया था, फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं उठी, उस हालत में भी उठी और मेडिटेशन किया 5 मिनट्स। मतलब ऐसा मेरा हालत था कि मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं उल्टा गिरने वाली थी। तो मतलब डर, मुझे लग रहा था कि डर से हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और फिर भी ये था कि नहीं, ठाकुर जी ये कुछ नहीं होगा, नॉर्मल वायरल होगा, दोनों को ठीक हो गया तो मुझे भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने फिर भी एक ऐसी चांस लिया कि बोला कि डॉक्टर को दिखा देते, कुछ सीवियर ना हो जाए। डॉक्टर से जैसी बात की, डॉक्टर ने बोला विदाउट कोरोना टेस्ट हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप पहले कोरोना टेस्ट करवा के हो। वो बोले नॉर्मल मेडिसिन लो। तो अब मतलब मुझे डर था कि मैं कोरोना टेस्ट कराने नहीं जाना चाह रही थी 2 बच्चों को लेके। तो तो उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं कराना टेस्ट, लीव इट, देखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक हो जाएगा। और 4th डे पे जाके मेरा फीवर कंप्लीटली डाउन, और मैं खड़ी हुई, खाना वाना बनाने लगी, सब कुछ घर का काम करने लगी। और सेम डे रात को मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं, अब मैं देख रही हूँ घर का लाइट वाइट जला है, 3 बज रहा है, 3 ही बज रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था 3 बजे ही हमारे घर सब बीमार पड़ रहे हैं। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, नौजिया हो रहा है, वोमिटिंग आ रहा है, और मुझे तबीयत सही नहीं लग रहा करके। तो मैंने थर्मामीटर लगाया, देखा तो उनको भी फीवर। मतलब ठीक है, अब टालानॉल आप भी खाओ और अब भी लेट जाओ करके, तो फिर खा के सो गया। बट उसके बाद वाले दिन से उनका सीवियर होने लगा, बहुत ज्यादा, मतलब उनको डायरिया स्टार्ट हो गया। तो सारे सिम्टम्स जो थे कोरोना के आ रहे थे। तो मैंने बोला अब डॉक्टर को दिखा के भी कोई फायदा नहीं है, पहले आप कोरोना टेस्ट करा के आओ, उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे करके। तो बोले ठीक है, मैं कोरोना टेस्ट करा के आता हूँ। संडे को वो कोरोना टेस्ट करा के, मुझे इतना डर लग रहा था, मैं बोली पता नहीं इतना वीक है, गाड़ी चला के जा पाएंगे कि नहीं। फिर भी ठाकुर जी का नाम लिया और बोला, हिम्मत रखा, बोले नहीं कुछ नहीं होगा, हो क्या हो करके। वो हो क्या है, मंडे को उनका रिपोर्ट आया कि ही इज कोरोना पॉजिटिव। तो मतलब जब तक कि हम मोटिवेट हो रहे थे ठाकुर जी का नाम ले लेके, और ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब अंदर से एक पॉजिटिविटी ठाकुर के जी के नाम से आ रही थी, नाम ध्यान में कंटिन्यू बहुत ज्यादा उस बीच कर ही रही थी, क्योंकि कोई ऑप्शन मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे, मतलब ऐसी सिचुएशन से जा रहे थे कि 2 बच्चों को लेके मैनेज करना मेरे लिए मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर उनका जब पॉजिटिव आया तो मतलब मैं एक्सपेक्टेड था कि हाँ पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि घर पे ऐसा चल रहा था और माहौल ऐसा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉजिटिव आया। फिर भी मतलब मुझे एक पावर जो बोलते हैं कि मुझे ये नहीं हुआ कि मैं ब्रेक नहीं हुई कि अरे ऐसा कैसे हो गया। मुझे ये था कि नहीं, ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी हमारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। और पर उनका जो है वो फीवर उनका डाउन नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा उनको वीकनेस आ रही थी, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो
डेली हम लोग को फोन आता था मेडिकल उससे हेल्थ डिपार्टमेंट से कि कैसे हैं, अब बस ऑब्जर्व करते रहो कि उनका जो कंडीशन है वर्स्ट साइड ना जाए, और वर्स्ट साइड जैसे ही जाता है आप इमरजेंसी में जाओ करके। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने ऐसी सिर्फ सिम्टम्स से रिलेटेड टाइलेनॉल और डायरिया कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दे दी थी, लेकिन वो सब भी कंट्रोल हो नहीं रहा था और खाना भी नहीं खा पा रहे थे, कुछ भी मतलब नहीं हो पा रहा था बहुत ज्यादा। डेली 10 दिन 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गया, फीवर जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। फिर मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल भी इतना हाई, और मैं सिर्फ काम कर रही हूँ और रो रही हूँ कि भगवान कब ये जाएगा, कब मतलब कब मेरे घर से ये सारी चीजें निकलेंगी। मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रही थी मैं बिल्कुल, दो मतलब सबको सब चीज अकेले अकेले मैनेज करके। फिर सडनली क्या हुआ, मन से ही मतलब पीछे से एक पॉजिटिविटी आती थी कि 6 तारीख को उत्सव है, देखना उससे पहले सब ठीक हो जाएगा। उत्सव है और हो सकता है कि तब तक कि तुम्हारा फीवर नहीं उतरेगा। मैं बोली मतलब सौरभ को बोली कि देखना तुम्हारा फीवर अभी नहीं उतरेगा, उत्सव के दिन ही तुम ठीक होगे करके। मतलब पता नहीं ये अंदर से मेरे मन में कैसे मतलब ये चीज आ रही थी कि नहीं, उत्सव के दिन ही हमारा पूरा फैमिली ऑल विल बी ओके और सब सही हो जाएगा। तो बोले कि मैंने उनको बोला धीरज रखो, धीरज रखो। मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो रहा था कि बोले और नहीं हो रहा मुझसे सहन, क्यों नहीं जा रहा, ये फीवर क्यों नहीं जा रहा है। तो और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब फीवर नहीं जाता था, और मैं बोलते हैं कि कोरोना इतना कंटेजियस है, सबको होता है। और मैं खुद मास्क लगाती थी, बच्चे तो मास्क नहीं लगा सकते, बच्चे नहीं लगाते थे, उनको मास्क लगाती थी और उनको मैं जबरदस्ती खींच के बैठाती थी कि नहीं मेडिटेशन करो, देखना फीवर लो होगा होगा करके। मैं उनको बार बार ऐसा करके मोटिवेट करके उनको मेडिटेशन करने के लिए बैठाती थी। और उसके बाद वो बोलते थे नहीं मुझे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 5th को नाइट को फीवर आना बंद हुआ विदाउट मेडिसिन। 5th को बिल्कुल फीवर नहीं आया और विदाउट मेडिसिन 6th को डायरिया कंट्रोल हो गया। तो मतलब एकदम हमारे लिए एकदम शॉकिंग, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद भी डॉक्टर्स और नर्सेस जो कॉल कर रही थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो बोले सिंस आप लोग क्लोज कांटेक्ट में हैं तो आप लोग को भी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो हमको डेली फोर्स करते थे कि आप जाओ जाओ करके कोरोना टेस्ट कराने। और मैं सोचती थी मैं 2 बच्चे को लेके इतने स्नो इतनी ठंड में मैं नहीं जा पाऊंगी 2 बच्चों को लेके जब तक के हस्बैंड साथ में नहीं जाएंगे। तो उनका जब फीवर नॉर्मल हुआ 5th को, तो हम लोग कोरोना टेस्ट करवाने गए। और कोरोना टेस्ट करवाने गए, आप मतलब मैं तो मुझे ये था कि मैं पॉजिटिव हो सकती हूँ क्योंकि मैं उनका केयर कर रही हूँ और साथ में मैं भी बीमार हूँ एक तरह से, लेकिन बच्चों को कुछ ना हो, उनका उनका जो कोरोना है वो नेगेटिव रहे। लेकिन शॉकिंग न्यूज ऐसा, मतलब हम तीनों नेगेटिव, हम तीनों, मुझे भी नहीं है कोरोना, मेरे बच्चों को भी नहीं है। तो हम लोग सोच में पड़ गए कि हाउ इज इट पॉसिबल, इतना कंटेजिनियस है और ऐसा भी नहीं है, एक ही घर है, ना वेंटिलेशन है, एक ही वॉशरूम है, सब कुछ सेम है, फिर भी हम कैसे बच सकते हैं और वो कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं करके। तो मैंने लास्ट डे जब हमारा आइसोलेशन खत्म हुआ तो नर्स ने पूछा कि नाउ यू कैन सेफली मूव आउटसाइड और डू यू हैव सम क्वेश्चंस। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि आप मुझे ये बताइए कि आइदर मैं कोरोना पॉजिटिव रही होंगी और नेगेटिव हो गई होंगी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को कोरोना ना हो करके। तो वो मुझे ये बोली कि नहीं आपको कोरोना नहीं होगा, मे बी सम अदर वायरस, क्योंकि कोरोना अगर होता है तो एटलीस्ट फ्यू वीक्स और 1 मंथ आप पॉजिटिव ही रहोगे। लेकिन आप ये चमत्कार ही बोलेंगे इसको, और नहीं तो क्या बोल सकते हैं, ठाकुर जी का चमत्कार कि एक घर में रहते हुए एक साथ खाना पीना सोना, मतलब ऑलमोस्ट 5 दिन हम लोग साथ ही में थे। जब पता चला कि कोरोना, तब हम मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए कि आप अलग से हो जाइए, बच्चों के पास मत आइए। नहीं तो उसके पहले मेरी छोटी बेटी उनकी गोद में खेल रही है, मैं साथ में खड़े बैठा के उसको खाना खिला रही हूँ, एक साथ हम लोग सब खाना पीना कर रहे हैं। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि वो पॉजिटिव है और हम लोग पॉजिटिव नहीं है। तो मतलब मुझे आज भी यही लगता है कि इतना कुछ हो गया। और हम मतलब ठीक है, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए दिक्कत जरूर आई, लेकिन ठाकुर जी की दया बनी रही, जिसके वजह से हमने मतलब इतना जो ऑलमोस्ट 20 डेज हमने इतना स्ट्रगल किया और मतलब इजिली स्मूथली निकल गया विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन।
तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ठाकुर जी पे भरोसा रखना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये विश्वास है कि नहीं, हमारे साथ बुरा कुछ भी नहीं होगा, ठाकुर जी है, सब संभाल लेंगे, तो वाकई में हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता और वो हमेशा हमारे ऊपर अपना दया शावर करते ही रहेंगे। बस इतना ही बोल के खत्म करना चाहूंगी। जय गुरु। थैंक यू सुप्रिया मा। अमन, ये तो बहुत ही क्या बोले, हार्ट टचिंग था। अगेन हम कह नहीं सकते हैं कि इतना क्लोज रहते हुए भी आप निकल पाए ठाकुर जी की दया से। और मैंने एक सत्संग में सुना था, बोलते अगर आपको बिलीफ हो ना, तो आप कहीं से भी बाहर निकल सकते हो। आप कितने भी दलदल में फंसे हुए हो तो आप हमेशा ही बाहर आ जाइएगा। जैसे कि उस स्टोरी में बोला गया, अगर आपके पास बिलीव हो तो वो वाटर पे वॉक करके और दूध पहुंचाने जाती थी। एक ग्वाले थी, मतलब ग्वाले की वाइफ थी, वो पहुंचाने जाती, तो वाटर पे डेली वॉक करती थी। वैसे ही आप में जो मतलब क्या बोले, इनर बिलीफ और स्ट्रांगनेस था, और वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी हम सभी को देते हैं। बट अच्छा है कि आप सब लोग आई मीन ये हो गए, रिकवर हो गए, और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि ठाकुर जी हमारे पीछे हमेशा है, हमें धक्का देके आगे हमेशा बढ़ाते रहते हैं और हमेशा ही कुछ अच्छा ही करने के लिए करते हैं। तो मैं इसके साथ ही आगे इनवाइट करती हूँ। आई मीन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मॉन्ट्रियल ग्रुप की जो वन ऑफ द जूनियर और बहुत ही सुरीली आवाज में हमेशा ही गाती है, तो अभिलाषा माँ, और उनका साथ देने के लिए उनकी मम्मा ममिता माँ दोनों हमारे साथ एक मेडले लेके आ रही हैं, तो विल एंजॉय दैट। Guru, today I'm presenting a medley consisting 3 songs: Asan Sajaike, Om Manvare, and Ogatira Tirupati. कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा मेरा पार, होगा तेरा मेरा पार रे, होगा तेरा मेरा पार। आसन सजाएंगे उनको भी चाहिए, आसन सजाएंगे उनको भी चाहिए, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा मेरा पार, होगा तेरा मेरा पार रे, होगा तेरा मेरा पार। ओ मनवारे, ओ मनवारे, साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। कंदा मुरे सासु का ये तार टूटेगा, कब कौन जाने, तोड़ के बंधन ये सारे, जोड़ गुरु के थामो, जोड़ गुरु के थामो, तोड़ के बंधन ये सारे, जोड़ गुरु के थामो, जोड़ गुरु के थामो। ओ मनवारे, অগতির চিরগতি নিখিলের তুমি পতি, অগতির চিরগতি নিখিলের তুমি পতি, দয়া করে প্রভু ধরে রাখিছ সংসার, অগতির চিরগতি নিখিলের তুমি পতি, অগতির চিরগতি নিখিলের তুমি পতি, দয়া করে প্রভু ধরে রাখিছ সংসার। জয় গুরু বলে ডাকি বারবার, জয় গুরু বলে ডাকি বারবার, জয় গুরু বলে ডাকি বারবার, জয় গুরু বলে ডাকি বারবার। ও मनवारे,
देख उनको तू मन के नजरिया, पावन कर ले तू मन को सावरिया, सावरिया सावरिया नजरिया नजरिया, सावरिया नजरिया सावरिया नजर। अरे प्रभु की महिमा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। ओ मनवारे, ओ मनवारे, जिगर गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा, जिगर गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा। सौंप दे तू अपना ये जीवन, वरेगा देखो की जानी, तोड़ के बंधन ये सारे दूर गुरु के थामो, दूर गुरु के थामो, तोड़ के बंधन ये सारे दूर गुरु के थामो, दूर गुरु के थामो। ओ मनवारे, তুমি ছাড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে, তুমি ছাড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে, তুমি ছাড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে, তুমি ছাড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে। প্রেম বাণী পাপ তাপ নাশিছ সবার, তুমি ছাড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে, তুমি ছাড়া কে বা করে করুণা করিতে পারে। প্রেম বাণী পাপ তাপ নাশিছ সবার। জয় গুরু বলে ডাকি বারবার, জয় গুরু বলে ডাকি বারবার, জয় গুরু বলে ডাকি বারবার, জয় গুরু বলে ডাকি বারবার। তোড়কে बंधन ये सारे दूर गुरु के थामो, दूर गुरु के थामो, तोड़ के बंधन ये सारे दूर गुरु के थामो, दूर गुरु के थामो। जय गुरु बोले डाकी बार बार, जय गुरु बोले डाकी बार बार, जय गुरु बोले डाकी बार बार, जय गुरु बोले डाकी बार बार। আমরা তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি দয়াল, আমরা তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি দয়াল, আমরা তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি দয়াল, আমরা তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। জয় গুরু। As usual, very nice performance, unique and a different and a beauty. What you people sing like 3 or 4 songs, I believe, and that to a different language. And medley is just so nice. I do not have other words to tell. Like it was so nice. So we would like to move again from Canada to USA. So I would like to request Sanghamitra Ma for Jajan. Sanghamitra Ma. Jai Guru. Yeah, over to you, Ma. We are able to hear properly. जय गुरु पुष्पम्मा, मैं क्या एक भजन का बाद में कर सकती हूँ पुष्पम्मा? नेक्स्ट कर सकती हूँ क्या? But nobody has said in such voice, and you are so ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। नेक्स्ट भजन का बाद में जो है ना, वो मुझे दे दीजिए थोड़ा सा। So sorry for that. because of lack of time. I can. ठीक है माँ, कोई नहीं, ठीक है। हाँ।
Just I would like to know whether Swapan Da or Ilama is here. We can go for the kirtan. हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी देर के बाद करते हैं। रास्ता वासुदा अगर है तो वो शायद ये करेंगे। हाँ, रास्ता वासुदा आप हैं क्या? Yeah. So just Raza, just I'm requesting you to go ahead and present your bhajan, or is it okay for you now? Sure, sure. आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। Okay. সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সকল ভুবনে ওগো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। ধাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে, ধাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে, এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে, এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা, সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা, তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা, সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা, তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা, বাসনা মোর এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে, বাসনা মোর এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে, পার হব গো ভব সাগর দয়াল তোমার শনে, পার হব গো ভব সাগর দয়াল তোমার শনে। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, সুরগুলি
গুলি সব ছড়িয়ে গেল, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সকল ভুবনে ওগো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে, আমার পরাণে, আমার পরাণে। জয় গুরু। Rasa, it was so melodious. I mean, I cannot tell, like it was so, it was like almost 5-minute song, but it went so fast. I could not realize. So Jai Guru Dada, it was so nice. So we are moving back to that Sangamitrama. Sangamitrama, are you ready now? यस माँ, मैं रेडी थी। जय गुरु सबको। मैं रेडी थी, पर मेरा हस्बैंड का और कहीं एक यूएस में सत्संग में बोलने का था, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। नहीं, सॉरी भी बोलना नहीं है, वो भी ठाकुर जी का काम है। जी जी, कोई नहीं माँ, अब आप आराम से कंटिन्यू करो। आपके पास लाइक 15 minutes for now, so you can continue. We are here to, yeah, thank you. जय गुरु सबको। ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या बड़ माँ के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबा दादा की श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादाओं माँ लोगों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मोमिता माँ बोल रहे थे मुझे कुछ बोलने के लिए। मैं क्या बोलूं, मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे बहुत सारा दीक्षा हुआ है, बहुत सारा मतलब 8 दीक्षा। तो अमेरिका के लिए एक साथ में 8 दीक्षा 1 महीना में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि 8 दीक्षा हो सकता है। और वही एकदम ठाकुर जी की दया के जो ठाकुर जी की दया हम लोग फील किए, वही मैं बोलना चाहती हूँ सबके सम्मुख। और मेरा बहुत गलती होगा बातों में, हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आप लोग मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ। तो बात ये है कि हम लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं। हम लोग 4 साल हो गया हम लोग अमेरिका में है। तो हम लोग बहुत सारा ट्राई किए, बहुत लोगों को बोले, बहुत किसी को नहीं छोड़े। किसी ठाकुर जी का बात, ठाकुर जी बाबा देव बोलते हैं सुबह को अगर दूध वाला भी मिले उसको भी ठाकुर जी का बात बोलना है। तो हम लोग ऐसे ही, दूध वाला तो नहीं मिलता है, लेकिन किसी को भी मिले तो ठाकुर जी का बात हम लोग बोलते हैं, हाँ, कि छोड़ते नहीं, किस थोड़ा सा भी बोलना है। तो ऐसे करके उनका भी ऑफिस का कॉलीग आते हैं, स्कॉटलैंड से आते हैं, दूसरा जगह से आते हैं, मेक्सिको से आते हैं। तो हम लोग सबको घर में बुलाते हैं, चाय पीते हैं, डिनर के लिए बुलाते हैं, सबको ठाकुर जी का बात बोलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का बात बोलना है, सबको सुनना है। वो तो जानते नहीं है ठाकुर जी का बात, वो सुने नहीं कभी, तो हम लोगों को सुनाना था। तो हम लोग 4 साल बहुत ट्राई किए। तो उसका बाद मन में बहुत दुख होता था। ऐसा लगता है कि हम लोग क्या ठाकुर जी का बात बोल नहीं पाते हैं, किसी को कोई समझता नहीं है ठाकुर जी के दया का बात। तो ऐसे करते करते कोरोना भी हुआ, कोरोना भी चल रहा है, और आईवीयू भी हुआ। आईवीयू के बाद जब आईवीयू चल रहा था, मेरा तब बर्थडे भी था, तो मेरे पति मुझे लेके गए, चलो थोड़ा कुछ खरीद लो, थोड़ा कुछ गिफ्ट खरीद लो। तो मैं जब गई, जब गिफ्ट दिखा रहे थे दुकान में, तब मुझे ऐसा लग रहा था, अरे गिफ्ट दिखा, मन ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक माइंड में चल रहा है कि हाँ गिफ्ट लेना है, दूसरा माइंड में चल रहा है कि अरे ठाकुर जी का एक दीक्षा नहीं हुआ, ठाकुर जी का बात नहीं किसी को बोल पाए और गिफ्ट लेना। तो ऐसे करके हम लोग छोड़ के आए। मतलब
मन अच्छा नहीं लग रहा था, गिफ्ट लेने का बात सोच ही नहीं रहे थे। तो जो भी हो, आईवीयू गया। आईवीयू का बाद में मन ऐसा खराब हुआ कि आचार्यदेव श्री दादा बोले है 3.5 करोड़ दीक्षा का बात, और हम लोग एक लोगों को दीक्षा का बारे में, ठाकुर जी का बारे में सुना नहीं पा रहे, कोई सुनता नहीं है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग आईवीयू के बाद में डेली निकलने लगे, हम लोग तीनों, और कोई नहीं, गुरु भाई और है 3-4 फैमिली, और हम लोग किसी को बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सबका काम रहता है, वीकेंड में सबका काम रहता है, वीकडेज में सबका ऑफिस रहता है। तो हम लोग तीनों ही, मेरा बेटा, हम लोग दोनों निकल गए, डेली निकलते थे। हम लोग क्या करते थे, खाना सुबह का कुछ खा के, लंच बना के, उसके बाद में हम लोग तीनों निकल जाते थे। खाना खाते नहीं थे क्योंकि खाने का बाद पूरा आलसी लग जाता है, तब निकलना नहीं होगा। तो बेटा को खाना खिला के हम लोग चले जाते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत दिन गए, बहुत दिन घूम के आए खाली हाथ, मतलब किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। तो उसका बाद एक दिन 1 जनवरी था, 1 जनवरी तो हम लोग गए एक पिकनिक में, मतलब एक गुरु भाई का फैमिली और हम लोग। तो हम लोग गए, तो हम लोग मन में ऐसा चल रहा था कि किसी को अगर हम लोग मिल जाए तो किसी को खिलाएंगे, कोई तो इधर में घर में आता नहीं है, तो किसी को, अगर हम लोगों के अलावा किसी को मिल जाए तो हम लोग खिलाएंगे किसी को। तो उधर में पिकनिक में हम एक माँ मिली, हाँ, जिनका ग्रैंडसन हमारे बेटे के साथ खेल रहा था। तो माँ को बोले, हाँ, आपका ग्रैंडसन है तो ठीक है, आप आइए ना हमारा इधर में, हम लोग खाना पीना कर रहे हैं, आप भी आइए, शामिल हो जाइए, तो थोड़ा खाना पीना कर लीजिए। तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई आएगा हमारे साथ। तो वो माँ आई, आने के बाद उन्होंने हमारे साथ खाना पीना खाया। तो खाने के बाद वो बोले कि जानते हैं आप लोग, मुझे बहुत भूख लगा था, आप लोग खाना खिलाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस दिन बोले क्या, तो आप लोग चाय, ऐसा चाय बनाए, बहुत अच्छा लगा चाय, तो चाय का रेसिपी चाहिए। तो हम बोले कि ठीक है, हमारे घर आइए, हम रेसिपी दे देंगे आपको। तो ठीक है, तो घर में तो बुलाए, लेकिन मन में एक डर था, उनका फैमिली में भी किसी का कोरोना हुआ था, तो डर था कि हम लोग कैसे बुलाए घर में। तो दूसरा जो गुरु भाई का फैमिली है, वो बोले थे, संघमित्रा तुम लोग अभी घर में मत बुलाओ। तो हम लोग भी सोचे, हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, हम लोग तो इमोशनल होके हाँ घर में बुला दिए थे, लेकिन हाँ घर में नहीं बुलाना है। तो हम लोग घर में गए, घर में नहीं बुलाए, एक पार्क में बुलाए। तो पार्क में बुला के बोले, ऐसे बात हुआ। तो बोल रहे थे कि मतलब मैं, जानते हो, तुम लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बोल रहे थे कि हाँ, मुझे आज एक सपना दिखा, मैंने एक सपना देखा, सपना में बहुत सारा कैंडी था, इतना स्वीट कैंडीज मैं खा नहीं पा रही थी। ऐसा कैंडी में रास्ता में पड़ा हुआ था, और मैं कैंडी का रास्ते से जा रही थी। तो मुझे लगता है मेरा कुछ अच्छा टाइम आने वाला है। तो हम लोग बोले, देखो हम लोग ठाकुर जी का बात बोले, ठाकुर जी के दया के बारे में बोले। तो हम बोले कि अगर तुम चाहते हो तो दीक्षा ले सकते हो, और सोचना, जो तुमने सपना देखा है, ये सपना में तुम स्वीट कैंडी देखा है तुमने, लेकिन जो तुमको मिलने वाला है वो दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट कैंडी होगा तुम्हारे लिए। तो वो बोली, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा लग रहा है कि सपना देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा दिन आने वाला है। तो उस दिन तो हम और एक हफ्ता बाद में उनका दीक्षा हुआ, वो थर्ड दीक्षा था। तो 3 जनवरी को उनका दीक्षा हुआ, 9 को, और 3 जनवरी को हम लोग गए थे, ऐसे ही डेली जैसे जाते हैं ऐसे जाते थे। तो क्या हुआ, किसी को भी नहीं मिल रहा था, किसी को भी बोलने, बहुत मन खराब हो रहा था, बहुत 2-3 घंटा से हम लोग कार से ऐसे घूम रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिला बात करने के लिए, किसी को बात करने का चांस भी नहीं मिला किसी से। तो हम लोग एक जगह रुके कि ऐसे देखे, किसी के घर में एक माँ कुछ काम कर रहे थे, लेकिन उनका गेट में लिखा हुआ था कि
आउटसाइडर जो है वो अलाउड नहीं है। तो मन में बहुत दुख लग गया, ऐसा भी होता है इंडिया में, तो ऐसा नहीं होता है, किसी के घर में जाने से लोग कितना खुश होते हैं। हमारा इधर में ऐसा है कि कोई तो आते ही नहीं और किसी के घर में जाना भी बंद है। तो ऐसा करके करके हम लोग ठाकुर जी को प्रार्थना कर रही हूँ, ठाकुर जी किसी को तो मिला दो। हाँ, हम लोग तो नहीं जानते हैं तुम किसको सिलेक्ट किए हो, लोग किसको सिलेक्ट किए हो, लेकिन तुम तो ये तो कर सकते हो कि पास में ला दो किसी को। तो हम लोग जब कार अपना स्टार्ट किए, उसका 10 मिनट बाद में एक माँ मिली। एक माँ उधर से आ रही थी, रास्ते से आ रही थी। हम लोग कार पार्क करके हम लोग उनसे बात किए। बोले तुम्हारा क्या हुआ, आपका कुछ प्रॉब्लम है? बोले हाँ, मेरा कुछ SSN कार्ड का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो उनको हम लोग ठाकुर जी का बात बोले ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। तो शाम को हम एक नंबर दिए, फोन नंबर। तो शाम को हम लोग जो जगह मिलने के लिए बोले, उसी जगह हम लोग गए। जब फोन किए कि हम लोग पहुंच गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, पहुंचने के बाद में उन जो फोन किए, फोन नंबर में उनका हस्बैंड फोन रिसीव किए। तो रिसीव करने के बाद हस्बैंड बोले क्या आप लोग ये सब बोल रहे हैं, भगवान ये सब बोल रहे हैं, ठाकुर जी भगवान का बात बोल रहे हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, आप लोग नहीं जानते, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा बहुत कुछ बोले, 5-10 मिनट हम लोग मन खराब करके फिर घूम के आए। उसके बाद में बोले कि हाँ, कल हम लोग कॉफी शॉप में मिलते हैं। तो कॉफी शॉप में पिछले दिन फिर गए हम लोग। तो उनका साथ वो भी आए, उनका वाइफ भी आए, जिनको हम पहले मिले थे रास्ते में। तो वो जब आए तो उनको हम लोग बोले ठाकुर जी का बात बोले और बचने पड़ने का बात बोले। तो वो बोले हाँ, समझ में आया मुझे। तो कैसा नाम मिलने से मतलब कैसा नाम मिलता है? तो हम लोग बोले ठीक है, तुम आओ, आने से तो पता चलेगा, तो तुम आओ। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए, तो फिर उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो फिर नहीं आए, हम लोग फिर घूम के आए। फिर नेक्स्ट डे गए तो उनका दीक्षा हुआ पहला। जो हस्बैंड जिन्होंने बोला हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग दीक्षा नहीं लेंगे, सब कुछ, उनका दीक्षा हुआ पहला दिन। फर्स्ट दीक्षा उनका ही हुआ अमेरिका में। तो 6th को उनका दीक्षा हुआ, 7th 8th बीच में गया, 9th को वो जो फर्स्ट जनवरी वाला माँ जो मिले थे उनका हुआ, और 10th में वो जो पहले मिले थे हम लोग 3rd जनवरी को, जिनका हस्बैंड ने दीक्षा लिया पहले, उनका वाइफ ने दीक्षा लिया। तो ये 3 दीक्षा हो गया। मैं सबका दीक्षा का बारे में बोलने से बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सबका नहीं बोलूंगी, 4th का बोल रही हूँ। और क्या हुआ, ऐसे ही ठाकुर जी का दया चलता रहा। मतलब जो बोला हम नहीं लेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, तो उन्होंने ही पहला लिया। ये भी ठाकुर जी का बहुत बड़ा दया है। उसका बाद में 4th जो दीक्षा हुआ, हमारे घर मेरा बेटा सामने खेल रहा था, तो उसको देख के एक माँ आई हमारे घर में आए, बोले ये 2 खिलौना है, तुम्हारा बेटा को देने के लिए मैं आया। तो मैं बोली ये तो मेरा बेटा का खिलौना नहीं है। तो बोले नहीं, तुम्हारे बेटा को मैंने देखा है, इसलिए तुम्हारे बेटा को देने के लिए मैं आई। तो क्या हुआ, तो बोले हम लोग बोले कि हाँ, घर में आइए ना, घर में आइए, आप आए हैं, कोई तो नहीं आता, तो घर में आइए, आप चाय वाय पी के जाइए। तो उसका बाद में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो वो जब आए तो माँ बैठे, तो 3-4 बात हुआ। तो उसका बाद में बोलने लगे, जो हमारा जो ठाकुर जी का आसन है, ठाकुर जी का आसन में कौन कौन है पूछ रहे थे, कौन है ये कौन है। तो ठाकुर जी का बात जब हम लोग बोल रहे थे, ठाकुर जी के दया के बारे में बोल रहे थे, तो भी उन्होंने बोला कि उनका कुछ सिवियर कुछ इलनेस है, और वो उनको डॉक्टर बोले हैं कि 2 साल से ज्यादा नहीं बचेंगे। वो माँ बोले कि 2 साल से ज्यादा नहीं बचेंगे। तो हम लोगों को मन में बहुत दुख लगा। तो वो आचार्यदेव श्री दादा का फोटो के सामने जाके बोल रहे थे
तुम लोग इतना ठाकुर जी का बात बोल रहे हो, हाँ ठाकुर जी के दया के बारे में बोल रहे हो, फोटो का सामने जाके बोल रहे कैन ही क्योर मी। जब ऐसा बोले ना, मैं आप लोगों को मैं क्या बोलूं, वो जो फीलिंग था, जो बचने का इच्छा था, तो वो मैं आप लोगों के सामने उनका जो एक्सप्रेशन है मैं बता नहीं सकती कभी भी। उनका एक्सप्रेशन हम लोग आंखों के सामने देखे हैं और बता सकते हैं। मतलब बचने का कितना इच्छा है, ठाकुर जी के पास प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको बचना है, कैन ही क्योर मी। तब मैंने ठाकुर जी की प्रार्थना की, ठाकुर वो तो तुम्हारे पास आया, वो माँ तुम्हारे पास आए, वो 2 साल से ज्यादा नहीं बचेंगे। हाँ ठाकुर जी, तुम ही उनको दया कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम उनको बचा लो, लेकिन जितना दिन है इतना दिन ठाकुर जी को लेके तो बच सकते हैं। तो ठाकुर जी का बात बोलने के बाद वो भी ठाकुर जी का दीक्षा लेने के लिए राजी हुए, तो उनका दीक्षा हो गया। और दीक्षा होने के बाद ठाकुर जी को जो प्रणाम कर रहे थे, फिर भी मैं प्रार्थना की कि ठाकुर जी, वो उनका और कोई सहारा नहीं है, तुम ही उनका लास्ट सहारा हो, और उनका जीवन ठाकुरमय होके रहे, वही मैं प्रार्थना की। और मेरा मन में विश्वास है कि वो 2 साल नहीं और ज्यादा साल ही बचेंगे, और ज्यादा दिन ही बचेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ये 4 दीक्षा हुआ, उसका बाद में और 4 दीक्षा हुआ। सब ठाकुर, जब ये शेरीमा जो है, ये 4th दीक्षा, वो पहला हमारा घर में दीक्षा हुआ था। उस दिन सुबह में सोच रही थी, ठाकुर जी सब दीक्षा कोरोना की वजह से जॉयस पार्क में हो रहा है, ठाकुर जी एक भी दीक्षा मेरे घर में नहीं हो रहा है। तो उस दिन ही 2-3 घंटे बाद में ही वो दीक्षा मेरे घर में हुआ। तो ठाकुर जी सत्यानुष्ठान में बोले हैं, सत चिंता अगर रहेगा ना, ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं। ठाकुर जी का प्रतिष्ठा करने के लिए अगर कोई इच्छा रहता है मन में, सब वो पूर्ण करते ही है। अगर हमारा खुद के लिए कुछ है तो शायद पूर्ण नहीं करेंगे, लेकिन ठाकुर जी का अगर कुछ काम है, अगर हम लोग चाहते हैं तो ठाकुर जी जरूर पूरा करते हैं। तो ऐसे ही ब्लिस जो हम लोगों ने हम लोग ब्लेस्ड है कि ऐसे घटना दिखाई दिया। हम लोग कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा भी दीक्षा हो सकता है। जो जॉयस पार्क है उधर में 7 दीक्षा हुआ और 1 दीक्षा घर में हुआ। जॉयस पार्क में जब दीक्षा हो रहा था ना, आप लोग, मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि जो ठाकुर जी का, जब वो लोग बोल नहीं सकते ठाकुर जी का नाम, अगर जो ट्राई करते हैं बोलने का, जब फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं जो अगर करते करते बोलने लगते हैं ना, ऐसा लगता है प्रकृति भी कितना खुश है। एक दिन हम लोग दीक्षा के टाइम जाते समय पूरा बारिश था, तो मन में सोच रहे थे कि यहाँ बारिश हो रहा है, अभी पार्क में कैसे दीक्षा होगा। पार्क में जब पहुंचे हम लोग, तभी मतलब सूरज पूरा शाइन कर रहा था हमारे तरफ कि हाँ अभी ठाकुर जी भी मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, ऐसे लग रहा था। जॉयस पार्क जो पार्क है, वो पार्क भी हमारा जैसा लगता है अपना है, ठाकुर जी का पार्क है, ठाकुर जी उधर में जाके बैठे हैं, ऐसा लगता है। तो मैं क्या बोलूं, और बहुत सारा बात है, टाइम नहीं होता है, तो और कभी भी मौका मिलने से बोलूंगी। और हम लोग जो हमारा जीवन है, हमारा ठाकुर जी को लेके ही चलना है। माँ पापा जो है, ससुर सासू माँ, हस्बैंड, बच्चे सब रहेंगे, पैसा भी रहेगा, घर भी रहेगा, लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ में जन्म से पहले भी थे, जन्म का टाइम में भी थे, अभी भी है, और नेक्स्ट जन्म में भी साथ में रहेंगे, जाने का टाइम भी ठाकुर जी रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा साथ में, सिर्फ ठाकुर जी रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी को अगर साथ में लेके जाना है तो हम लोग को सारा जीवन ठाकुर जी का बात सोचना है। अगर हम लोग सोचेंगे सारा जीवन, तभी हम लोग लास्ट मोमेंट में ठाकुर जी साथ रहेंगे, और वही हमारा ईश्वर प्राप्ति है। मुझे यही फील होता है। और सबका मंगल कामना करके, सबका ठाकुरमय जीवन कामना करके, मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करके सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब ठाकुर जी को लेके रहे। और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 3.5 करोड़ पूरा करना है। अजयदेव श्री दादा बोल दिए हैं, और
पूजनीय बाबा दादा एक बार बोले थे किसी एक बार देवघर का पवित्र दा आप लोग जानते होंगे, उनका जाजन सुना है मैंने। वो बोल रहे थे, पूजनीय बाबा दादा बोले हैं ठाकुर जी का जो लिटरेचर है, जो ठाकुर जी बुक्स देके गए हैं, वो पढ़ने के लिए हम लोग का बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लग जाएगा। हम लोग को इतना टाइम नहीं है। अगर हम लोग आचार्य देव श्री श्री दादा का हर एक निर्देश हम लोग जीवन में पालन करते रहेंगे, तब हम लोगों का जीवन ठाकुर में ऐसे ही होते रहेगा। तो यही बोल के मैं समाप्त करती हूँ। सबको मेरा बहुत बहुत मंगल प्रार्थना करती हूँ ठाकुर जी के चरण में, सबके लिए, और सब अच्छे रहिए, ठाकुर में रहिए। जय गुरु। जय गुरु माँ। आपने जो 4th दीक्षा बताया कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मैं सोच के आंखों में आंसू आ रहा है कि वो कैसे ठाकुर जी के सामने अपने मतलब लाइफ का ये मांग रही कि ठाकुर मुझे बचा लो, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो ठाकुर जी के पास ही है जो करेंगे। और मतलब पता नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया। आपने इतना सारा कहानी बता दिया इस बीच में, और साथ में जिसे चाय बनाना नहीं आता तो उसे चाय भी बनाना सिखा दिया। ये बहुत ही बड़ा है। दीक्षा के साथ साथ चाय भी बनाना बता दिया। ये बहुत ही और एक रिसेंटली मैं और एक 2 मिनट लूंगी। मेरा हस्बैंड का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है 28 फरवरी को। बट से फोन आया कि 3 फरवरी को कि ये मोमिता माँ भी जानते हैं, तो फोन ऑफिस से खबर आया कि 28 को 6 लोगों का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, काम खत्म होने वाला है। तो हम लोग सोचे अरे हम लोग का क्या चिंता, इंडिया चले जाएंगे, कुछ नहीं है, अरे दाल भात ही तो खाते हैं, नौकरी का क्या चिंता। हाँ, तो मतलब मन में कुछ टेंशन नहीं था। और ठाकुर जी क्या दया है, वो 6 लोगों का ग्रुप है, तो 3 फरवरी को बताए कि हाँ खत्म होने वाला है, आप लोग दूसरा कुछ ट्राई करना है। आप लोग जानते ही होंगे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में क्या होता है। तो 4 फरवरी को सुबह को फोन करके बोलते हैं हाँ तुम लोग रेडी हो जाओ दूसरा के लिए। और फिर 1-1.5 घंटा बाद में बोलते हैं अरे तुम तो तुम्हारा साथ में मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, बॉस बोल रहा है बहुत अच्छा रिश्ता है, हाँ तो तुम ग्रुप में भी सीनियर हो, अरे तुमको मैं तक ही रख देता हूँ। तो हम लोग ठाकुर जी के ऊपर वो जो सोचते हैं ना, ठाकुर जी के ऊपर अगर छोड़ देंगे सब कुछ, तो ठाकुर जी ऐसे ही सोचेंगे, हम लोग को चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो यही एक हम लोग का पर्सनल एक बात में शेयर किया, तो वही था। तो ठीक है, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। तो अभी हम लोग बुलाते हैं, हमें इनवाइट करते हैं आशीष वसुदा और मौमिता मधुस्मिता वासुमा फ्रॉम USA to present a kirtan. Ashish, it's over to you and Ma. Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru Dada. Jai Guru. Actually, I was spellbound. You are looking so dashing. Oh, thank you. Spellbound listening to Sanghamitra Ma. I know the elongated part of the story, much expanded part of the story from her husband, our loving brother, Gauri Bhai. So what a spectacular journey he is going through, First, the boss says that you are off February 28, and then overnight, he changes his mind and extends 3 months bonus. He's not worried about 3 months. That's the main part. But he's outstanding. We are so blessed in Satsang America to have him and have this family. मेरा एक उम्मीद है आपके सबको पास कि if you can say a prayer so that Gauri Shankar Bhai and his family can stay in this country. And और दीक्षा दे सके, और दीक्षा दे सके, हमको इंस्पायर कर सके. And the second prayer, that it is optional, that if they move to Atlanta, Georgia, where we are from, that would be a bonus. So this is a
kirtan that is written by Pujaniya Obinda, and the musical composition has been constructed by his father, Pujyapad Bawaiya. Jai Guru. জীবন নাথে সরিয়ে খুঁজে বেড়াস প্রাণের খুনি তুই কেমন জীবন নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণের খুনি তুই কেমন ভোলাম তুই কেমন জীবনে নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণে খুনি তুই কেমন জীবনে নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণের খুনি তুই কেমন ভোলাম তুই কেমন তত্ত্ব কথা শুনেই তাতে রইলি সদাই মত সেবার সাধন যোগ্য ভুলে ভুলি সবাই দয়া করে চলে সবার আপন জীবন দানি আর কথা তো তুইও বলিস সেবা বিমুখ অজ্ঞানী তার কথা তো তুইও বলিস সেবা বিমুখ অজ্ঞানী সেবা বিমুখ রে অজ্ঞানী সেবা বিমুখ রে অজ্ঞানী তার কথা তো তুইও বলিস সেবা বিমুখ রে অজ্ঞানী তার কথা তো তুইও বলিস সেবা বিমুখ রে অজ্ঞানী ভোলাম তুই কেমন জীবন নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণের খুনি পুলিশ নিয়ে মধুর ভাণ্ড
সত্য তাহার পেলি না রে, অমৃত যা সত্তাদানি, এখনো শেষ হয়নি বেলা, তাকা এবার প্রভুর পানে, এখনো শেষ হয়নি বেলা, তাকা এবার প্রভুর পানে, সেবার সাধন কর না ছুটে, 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 সারা জীবন টানে টানে, সেবার সাধন কর না ছুটে, সারা জীবন টানে টানে, শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, এই হবি তখন সত্য জ্ঞানী, হবি তখন সত্য জ্ঞানী, এই হবি তখন সত্য জ্ঞানী, হবি তখন সত্য জ্ঞানী, শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, এই সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, 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 এই হবি তখন সত্য জ্ঞানী, হবি তখন সত্য জ্ঞানী, এই সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, বলবি সকল অভিমানী, বলবি সকল অভিমানী, ভোলাম তুই কেমন ভোলাম কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী, জীবনে নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণের খুনি, তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী,
Joy Guru. I have to add one thing that 3 nights ago, I was talking to Pujani Obinda. I was very blessed that I had to talk to him. But he said about coronavirus that all of us be vaccinated. So if we have reserved, like, many like Mormons, they don't nations. There are some other people, they don't want to. But Vin Babu said, tell everybody that that everybody should be vaccinated. And about 5 or 6 weeks ago, my wife had an opportunity to talk to Bodo Bourani, who is Pujapad Babaida's wife. And my wife suddenly told her that, Bourani, we have started vaccinating in this country. And response to that was that vaccination is a very good thing, but you must make sure that all of you take Thankuni Pata, Thankuni leaves or Thankuni tablet. So I just wanted to add these two because it is a song by Ovin Babu and composed by Babu. Joy Guru. Thank you for giving me. It was like Khub Bhalo, Khub Darun. I don't know all the Bengali word, but I want to tell some of them. And I feel like if you were have like physical satsang, we all would have danced here with your beats. How good you are singing, Ashish and Ma. It was so amazing. So, Jai Guru to all. We are moving to the next. I would like to request Shreyang Da to share his experience because he's recently initiated, and I would like him to share his experience with us. Shreyang Da. Joy Guru Ma. Over to you. You have like 5 to 7 minutes, just so please go ahead. No problem. Jai Guru Ma. Jai Guru to all of you. श्री श्री ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बरिमा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री वार्ता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम. सो मेरा नाम श्रेयांग गुप्ता है, मेरी वाइफ अर्जिता बंसल. सो हमको मतलब सबसे पहली बार मतलब अर्जिता डांस सिखाती है यहाँ पे मॉन्ट्रियल में. तो मिष्टी जो मतलब मौमिता माँ की बेटी है, मिष्टी मतलब अभिलाषा, सो उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन किया था. तो फिर मतलब कुछ शायद 1-2 महीने के बाद फिर हमें पता चला कि सत्संग भी होता है यहाँ पे मॉन्ट्रियल में. तो इन्होंने हमें इनवाइट किया अपने घर. तो जब मैं सबसे पहली बार गया तो मेरे को अच्छा लगा. मतलब यार शांति मिलती है एक प्रकार से, जैसे अब आप मतलब भजन सुनते हैं अच्छी आवाज में, और राधे राधे जो है वो, और 1-2 सॉन्ग्स और हैं मतलब बंगाली में है, बट मेरे को उसमें अच्छा लगता है. राइट, रिदम होती है एक, तो शांति से मिलती है. तो हम लोग 2-3 बार गए. फिर मौमिता माँ ने कहा, मेरी इनसे भी बात हुई, तानुदा से भी बात हुई कि आप ज्वाइन करें. मैंने कहा चलो मैं सोचता हूँ, बिकॉज सब लोग सोचते हैं राइट कि हाँ ज्वाइन करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है. फिर एक दिन हम लोग मतलब दिवाली का ही समय था ऑलमोस्ट, मतलब शायद 12-13 नवंबर की बात है. तो मैं इसको लेके आ रहा था अर्जिता को. तो गाड़ी में इसने बोला मेरे से कि मौमिता माँ बोल रही है लेट्स, मतलब क्या करना है. तो मैंने बोला, मैं पहले थोड़ा चुप रहा. मैंने इस बार सोचा 5 मिनट, मैंने कहा लेट्स ज्वाइन नाउ, कि काफी समय हो गया, लेट्स ज्वाइन. तो मैंने कुछ सोचा एक्चुअली, तो मैंने कहा ज्वाइन करते हैं. फिर मैंने ज्वाइन किया, बट उस ज्वाइन के पीछे ज्वाइन करने का एक कारण था. मतलब मैं अर्जिता को मैंने आप बताया बाद में कि ना जैसे जब हमारी धरती की सृष्टि की रचना हुई, तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी. जब इस भगवान ने सृष्टि की रचना करी, तो इस सृष्टि को आगे चलाने के लिए इंसान की रचना हुई, क्योंकि इस इंसान को जिस तरीके से बनाया गया है वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है. जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होता है, लीवर, जो कि अपने आप रिकवर हो सकता है, और कोई पार्ट ऐसा नहीं जो रिकवर हो सकता है. इसलिए भगवान ने लीवर एक ही दिया, और वो अपने आप रिकवर हो सकता है. अगर उसको ऐसा करते कि रिकवर नहीं हो सकता, तो पता नहीं कितने लोग तो निकल चुके होते हैं. तो इस बॉडी की रचना बहुत ही अलग तरीके से की गई है, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, भगवान ही रचना कर सकते हैं. और फिर जब भगवान ने कहा कि अब हमने इंसान बना दिए हैं, बट मैं हमेशा इस धरती पे नहीं रह सकता, तो इस भगवान ने कुछ प्राणियों को जन्म दिया, जैसे हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी.
जो कि एक भगवान का ही रूप थे, उनको इस धरती पे जन्म दिया जिससे कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सही राह पे चल पाए। तो फिर क्योंकि मेरी मम्मी भी सत्संगी है, तो मम्मी से मेरी बातचीत होती रहती है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये सही बात है, जैसे हमारे शिरडी साईं बाबा हैं, वो भी एक इंसान का रूप थे बट आज वो भगवान कहलाए जाते हैं। तो भगवान ने कुछ प्राणी को जन्म दिया इस धरती पे, जैसे तो जिससे कि हम आज हमारी एक जनरेशन है, अब हम उनके चरणों पे चल रहे हैं, जो श्री श्री ठाकुर ने आज से 100 साल पहले जो बातें लिखी थी, हम उन बातों को दोहराए जा रहे हैं। और वो बातें आज नहीं, वो आगे से 100 साल बाद भी सही कहलाई जाएंगी, क्योंकि वो एक इंसान ने नहीं, एक प्रकार से एक भगवान के रूप में ही लिखी हैं वो बातें। क्योंकि वो हर कोई नहीं लिख सकता, आप नहीं लिख सकते वो बातें, या मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि वो एक वरदान होता है, राइट? वो हर किसी को नहीं मिलता, तो इसलिए आगे कंटिन्यू की जाती हैं वो सब चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं, मतलब मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। आप लोग सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका। जैसे एक टीचर होता है क्लास के अंदर, तो एक बच्चा टीचर से, हर बच्चे की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। कोई बच्चा होता है टीचर से कहता है कि नहीं वो मेरे को प्यार करे, कोई टीचर से कहता है कि नहीं रहने दो, मैं ऐसे ही सही हूँ जैसा हूँ, टीचर अपने आप देखेगा जैसा हो रहा है। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैंने श्री श्री ठाकुर को माना है। अभी तो मैं कहा 2-3 महीने हुए हैं, तो मैं इतना एक्सपीरियंस तो मैं अभी, मतलब अभी हमारी लाइफ में अभी 2-3 महीने हुए हैं श्री श्री ठाकुर को आए हुए, तो इतना कुछ हैपनिंग भी नहीं हुआ है। बट मेरा ऐसा सोचना है कि हमने अगर अपने स्थान पे श्री श्री ठाकुर को स्थापना दे दी है, देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, राइट? व्हाई? आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा और आपके ना कहने से कुछ नहीं होगा, वो आपके साथ हैं। अब जैसे आपके माँ बाप होते हैं, आप कुछ कहो या ना कहो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके अगर आंखों से आंसू निकलेंगे तो उनको दर्द होगा, आपकी खुशी में उनको खुशी मिलेगी। आपके ना कहने से या ना करने से उनका प्यार नहीं बदलेगा, उनका प्यार आपके साथ हमेशा ही रहता है। तो श्री श्री ठाकुर जी का भी जब आपने नाम ले लिया है, तो वो आपके हमेशा साथ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, बिलीफ है, राइट? क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आगे चीजें बढ़ेंगी नहीं, राइट? आपने जब अपने गुरु पे बिलीव कर लिया है, तो उसको आप कर लिया, राइट? उसके आगे क्वेश्चन नहीं होता कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब हो रहा है, राइट? वो भगवान का रूप थे, उन्होंने हमें मतलब आशीर्वाद दे दिया हमारे ऊपर। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको ऐसा आशीर्वाद मिलता है। मतलब मैं अपने को लकी मानूंगा कि हाँ चलो, मतलब ममिता माँ और तानुदा की वजह से मतलब हमको ऐसा अवसर मिला। तो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, बट कुछ सिलेक्टेड लोग ही होते हैं जिनको ऐसा करने को मिलता है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बहुत ही मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं, राइट? अपने आखिरी समय तक भी हम लोग पैसा, अपनी अपना मतलब अपना अटेंशन, मतलब कोई हमें बोले हाँ भाई, तो मोह माया का एक जाल होता है ना, उसमें हम लोग फंसे रहते हैं जिंदगी भर। हमारी जिंदगी कब कट जाती है हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम 80 साल के हो गए, अब जिंदगी बची नहीं है। तो मतलब कैसे बताऊं कि एक वो उस पार्ट से हटने का एक मौका है, मतलब आप समझिए। मतलब आप जब थोड़ा सा सत्संग ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये ना, आप जब किसी भी 100 साल के व्यक्ति से पूछेगा, कभी कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, कभी नेट पे भी देख लेना कि वो क्या कहेगा अपनी यंग जनरेशन से क्या करना। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बहुत पैसा कमाना, वो हमेशा ये कहेगा, क्या कहते हैं, कि अपने रिलेशंस को हमेशा अच्छी तरीके से रहना, प्यार से बात करना सबसे। कभी ये नहीं कहेगा बहुत पैसे कमाना या खूब कार में घूमना या खूब शहर घूमना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर, राइट? सबसे एट ऑफ द डे मैटर करता है कि आप अपने माँ बाप की किस तरह सेवा करते हैं, आप अपने गुरुओं की किस तरह सेवा करते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अभी, मतलब मैंने ज्वाइन इसलिए किया, मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो क्या था, मैंने ज्वाइन ही इसलिए किया क्योंकि ये आपको थोड़ा शांति प्रोवाइड करता है, और मतलब शांत हो जाते हो आप थोड़ा सा, और मोह माया के जाल से जितना दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आप मोह माया बिल्कुल ही भूल जाओ, क्योंकि आप यंग हो तो यू शुड हैव समथिंग, राइट? बट इट्स नॉट लाइक कि आप, मतलब मैं जब बतानू था ममिता माँ से मिलता हूँ तो वो ये नहीं कहते कि नहीं तुम पूरे सफेद कपड़े में पहन के आओ, तुम ये करो वो करो। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा बातें सुनो, थोड़ी अच्छी बातें सुनो। कोई हमें कोई गंदी बातें तो बता नहीं रहा, अच्छी बातें, उससे हमारा मतलब हमारा जो ध्यान है वो अच्छी तरह होता है। और हाँ, मेडिटेशन का भी बहुत फायदा मिला है मेरे को, थोड़ा सा शांति आई है। मतलब अभी तो मैं इतना नहीं कहूँगा कि बहुत सारे चेंजेस, इट्स वेरी अर्ली टू से ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल राइट, अ पॉजिटिव थिंग्स केम टू माय लाइफ। अब जैसे रिसेंटली, जैसे अब इसके पापा का, जैसे हमने 14 तारीख को ज्वाइन किया दिवाली को, और शायद 15 तारीख को कोरोना हो गया, और इसको पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी ये, तो मैंने बोला ठीक है, अब देखो हो गया कोरोना, इट इज साइंटिफिक फैक्ट कि कोरोना हो गया। वो
रहेगा एंड वो थोड़ा जाने में टाइम लगेगा, मेरे पापा डायबिटिक हैं। तो वो टाइम लिया उन चीजों को, बट मैंने बोला बिलीव रखो एंड होगा, क्योंकि अब आप विश्वास नहीं मानोगे, ये सुबह से आई थिंक अभी रिसेंट बात है, अभी रिसेंटली उनकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो गई थी तो 84 पे पहुंच गई थी, तो ये दिन भर श्री ठाकुर के सामने बैठी रही, मतलब सुबह से लेके शाम तक अपना दिया जलाया और अपना बैठी रही, कह रही मैं उठूंगी नहीं, खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा देख ऐसा है, खाना तो खाने खाने से कुछ होगा नहीं। तो वो एक्चुअली जब बैठी तो 2 घंटे की बात है, 2 घंटे के बाद ही उनकी ऑक्सीजन 84 से सही हो गए, मतलब 93 94 पे आ गई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ कि मैं श्री ठाकुर की वजह से वो, बट ये एक बिलीव होता है कि आप बिलीव आपने किया, आपने पॉजिटिव एनर्जी दी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होके उनके पास गई, क्योंकि इट्स अबाउट एनर्जी, राइट। तो हो सकता है उसकी वजह से भी हुआ हो ऐसा, बट ऐसा हुआ और फिर ये अपना इसके पापा अब आज की तारीख है और उसका दिन है, अब सही है, मतलब कंडीशन स्टेबल है और सही हो गए, बात अपना आराम से कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब थोड़ा विश्वास रखने की जरूरत है हमें, और मतलब कुछ ही लोग होते हैं जिनको वरदान मिलता है, उनमें से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग भी लकी हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चल पा रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप लोग भी विश्वास रखें और बस बिलीफ रखें कि जो होगा अच्छा होगा, मतलब और बुरा भी हो रहा है तो वो एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि अगर बुरा नहीं होगा तो आपको अच्छाई का महत्व नहीं पता चलेगा एक्चुअली में, क्योंकि अच्छाई का महत्व तभी पता चलता है जब बुरा होता है आपके साथ। तो बस ये कुछ पार्ट पढ़ाते हैं, मतलब जीवन के कुछ पार्ट हैं जो हमें मिलते रहते हैं कभी कभार कि हाँ अच्छा है बुरा है, बट विश्वास रखे रखे अपना सब सही होगा। बस इसी के साथ मैं प्लान करता हूँ बात का। जय गुरु। Jai Guru Sangha. It's so practical. I mean, no artificial essence anywhere. So we could think like that way. We have to trust in a very, clean mind and go with the Thakurji always. So Jai Guru again, and we would like to move to Swapanda and Ilama to present a kirtan. Jai Guru. Jai Guru to all. This is a Hindi bhajan, so if you know the song, sing with us and take the anand. बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घट का कोई राह दिखाए, बिन कौन प्रभु पारे लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पारे लगाए, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पानी घट का कोई राह दिखाए, बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, पानी कहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरख स्वामी दया कर, माझी मूरख स्वामी दया कर, तारन हारी तेरे बिन अब, तारन हारी तेरे बिन अब, जल्दी से क्या हो गया? बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार
स्वामी तेरे बिना जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, काल मरण से कौन बचाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, मन खटका कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिन कोई न रक्षकारी, तुझ बिन कोई न रक्षकारी, प्राण तेरे चरणों में अब, प्राण तेरे ही चरणों में अब, जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, मन खटका कौन राह दिखाए, बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। और माँ, ये बहुत ही अच्छा भजन था। शुरू में थोड़ा आवाज कम आया, लेकिन बाद में हम लोग बहुत अच्छे से सुन पाए। और रियली में आप लोग बोला तुझ बिन प्रभु कौन पार लगाए, तो ठाकुर जी के बिना कोई हमें पार लगाने वाला नहीं है। इसी के साथ अब हम लोग ये आखिरी भजन था आज के सत्संग का, और हम लोग अब जय राधे राधे कीर्तन करेंगे और उसके बाद ध्वनि और ऑफिशियली सत्संग वहाँ हो जाए। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে রইয়ে। গোবিন্দ নামটি বদলে রইয়ে। নয়ন
গোবিন্দ গোবিন্দ বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মূল ধর্ম রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপানামি করো রে রেশা ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপানামি করো রে রেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে पुरुषोत्तमं वंदे वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय आराध्य जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परम पूज्य पाठ श्री बोधा की जय परम पूज्य पाठ श्री बोधा की जय परम पूज्य पाठ श्री बोधा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आज पितृम वंदे राष्ट्रपुत्रं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे हम कृष्ण देवतम वंदे
Christus. वन्दे पुरुषोत्तमं Vande Purushottamam. वन्दे पुरुषोत्तमं Vande Purushottamam. परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की Jai. तो जय गुरु सभी को। अब हम लोग आज का सत्संग ऑफिशियली यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो अगर किन्हीं भी माँ और दादा को कुछ भी शेयर करना है या कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। और जय गुरु। तो काल तो ठाकुर जी का महाप्रयाण तिथि है, सो जस्ट रिमाइंडर। तो भविष्य